હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ જેનેક્સ આઈએસ. જો આપ સબ લાઈવ હો અને ઓડિયો વિડિયો ક્લિયર हो તો મને એકવાર કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો સો દેટ હું લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરી શકું. ઓડિયો વિડિયો બધું ક્લિયર હોય, નેટવર્ક પ્રોપર છે તો મને એકવાર કમેન્ટ સેક્શનમાં ખાસ જણાવી દો સો દેટ વી કેન સ્ટાર્ટ આર લેક્ચર. આજે આ લેક્ચરનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આર્ટિકલ 32 દેટ ઇઝ રિટ જ્યુરિસ્ડિક્શન અથવા તો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડી આપણે આજે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. એમ તો આ ટોપિક બહુ લેન્ધી નથી, બટ 2025-26માં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જજમેન્ટ આવ્યા છે એના કારણે આમાં ખાસું એડિશન અને સબસેક્શન થઈ ગયું છે. તો જનરલી જ્યાં સુધી આપણે રીટ સ્ટડી કરતા એના કરતાં આ ટોપિક થોડુંક ડિફરન્ટ થઈ જાય છે આર્ટિકલ 32. જ્યારે અમે તૈયારી કરતા તમારા માટે મેઇન પ્રોબ્લેમ હતી રીટ ભણ્યા તો બહુ બધું યાદ હતું, હેબિયસ કોર્પસ, મેન્ડેમસ સર્જરી, પ્રોહિબિશન વગેરે, બટ ખ્યાલ જ નહોતો કે એકચ્યુઅલી રીટ કોને કહેવાય. એટલે આ લેક્ચરનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે તમને એક બેસિક ફાઉન્ડેશનલ નોલેજ આપવાનો, રીટ કોને કહેવાય છે. 2025-26 ટિલ 12th ઓફ માર્ચ જે ભી ઇમ્પોર્ટન્ટ જજમેન્ટ આવ્યા છે અને લઈને એને ખાસ આપણે ધ્યાન લેશું અને એના જે એમસીક્યુ બનતા હોય એની ખાસ વાત કરી લઈશું. ઓકે सौरभ, ओके, रश्मि, प्रणाम बेटा, खुश रहिए. चलो तो स्टार्ट करिए. फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 ने जानवा માટે ડોક્ટર બી આર આંબેડકર સાહેબનું લેંગ્વેજ સૌથી બેસ્ટ હશે. ડોક્ટર બી આર આંબેડકર બંધારણ સભામાં સોરી इंग्लिश मीडियम बैच, आई एम सॉरी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा था कि वाई आर्टिकल 32 मैटर्स टू मच. रिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिट? रिट का मतलब होता है एक रिटन ऑर्डर. लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. लेट्स सपोज किसी इंसान को पुलिस अथॉरिटी इलीगली डिटेन कर रही है. डिटेन इसलिए किया गया क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे, नॉट अगेंस्ट नेशन बट अगेंस्ट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इज आवर राइट, दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी मींस. बट गवर्नमेंट ने अपने पावर का मिसयूज किया और पुलिस अथॉरिटी इस इंसान को डिटेन करके ले जाती है. दिस डिटेंशन इज इलीगल. ओके, इन दिस सिनेरियो the victim have the chance to go to district court. district court जाए, application file करे कि detention illegal है, etc. but this might take a longer time, maybe month, 2 month or maybe years, क्योंकि हमारे district court में बहुत सारे cases pending पड़े हुए हैं. तो हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम प्रोसेस ले ले illegal detention से प्रोटेक्ट करने के लिए. That's the precise reason यहाँ पे रिट पिक्चर में आती है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने कहा था rights are of two type. One, a legal right given by statute, law, right, and another is fundamental right that is given by our constitution part 3 as a human, right. तो fundamental right अगर violate हो रहा है तो we cannot wait for entire process कि कोर्ट जाया जाएगा, एक एप्लीकेशन दी जाएगी, कोर्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, केस स्टार्ट होगा and a so lengthy process. Precisely that's why Ambedkar sir said कि no, we cannot wait to impose our fundamental rights via this process, the nominal process जिसको हम कहते हैं. In this thing we need a extra or something like extraordinary right. और ये extraordinary चीज होती है writ, जहाँ instead of following the entire procedure, you can directly approach the Supreme Court of India or the apex court of this country. And this will not take so much of time. वो जो एक एप्लीकेशन करना, यहाँ वहाँ जाना, ये सब प्रोसेस खत्म हो जाएगी. जैसे आज अगर आपने देखा हो तो हरीश राणा जजमेंट कल आया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जजमेंट ऑफ यूथ इन एशिया. हम 11 से 12 वही पढ़ने वाले हैं. हरीश राणा जजमेंट का जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यही है कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन, हरीश राणा जजमेंट खुद रिट ज्यूरिसडिक्शन में आया है, जहां पे जब फादर सभी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर जाते हैं तो वो एपेक्स कोर्ट में रिट अप्लाई कर देते हैं. रिट का मतलब है मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आई कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. मुझे वो पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो लेंदी प्रोसेस को बाईपास कर सकता है. इसीलिए इस एक आर्टिकल को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. राइट टू रेमेडी.
राइट, सॉल्यूशंस का राइट है, रेमेडी का राइट है, राइट टू रेमेडी। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यू विच आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही फेमसली रिप्लाइड that according to me article 32, this article is the heart and soul of Indian constitution, इसकी आत्मा और हृदय दोनों है, क्योंकि विदाउट आर्टिकल 32 द फंडामेंटल राइट विल बी अ टूथलेस टाइगर। तो हमने कह तो दिया कि राइट्स होने चाहिए, बट नहीं मिले तो उसको इंपोज कराने का प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है कि लोग उसे भूल जाते हैं। जस्ट इमेजिन आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आई कैन स्पीक एनीथिंग, बट अगर मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो गवर्नमेंट मुझे अरेस्ट कर लेगी। नॉमिनल प्रोसीजर ये है कि इसके बाद आप कोर्ट जाइए वगैरह वगैरह वगैरह, तो फंडामेंटल राइट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो एक लीगल राइट बन जाएगा। प्रिसाइजली हियर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आता है। ये राइट आर्टिकल 32 के अंदर ये दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और सिमिलर राइट हम आर्टिकल 226 में देते हैं हाई कोर्ट्स को। सेम राइट है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि रिट ज्यूरिसडिक्शन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास भी होनी चाहिए, जिसको हम लोअर जुडिशरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहां भी होना चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट एक्सेप्टेड दैट, दे सेड नो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज फाइन, बट सब ऑर्डिनेट कोर्ट में हमें रिट ज्यूरिसडिक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए। इसलिए इन दोनों में एट प्रेजेंट रिट ज्यूरिसडिक्शन है, इनका फाउंडेशनल डिफरेंस समझना जरूरी है। बेटा सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है दैट ओनली अप्लाइज टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाता है। बाय हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू फंडामेंटल राइट एंड अदर रिट्स, मतलब हाई कोर्ट ज्यादा टॉपिक पे, ज्यादा मैटर्स पे रिट इशू कर सकती है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फंडामेंटल राइट। इसीलिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा बड़ा है। हाई कोर्ट्स हैव वाइडर रिट ज्यूरिसडिक्शन while Supreme Court have narrower writ jurisdiction. It means Supreme Court only fundamental right के writs को के लिए writ issue कर सकती है, while High Court fundamental right and other matters के लिए writ issue कर सकती है। Second most important thing, जहां पे आपकी बुक्स कुछ ना कुछ मिस कर रही है, Supreme Court cannot deny an application of writ. Supreme Court के लिए mandatory है application of writ. Why? क्योंकि Supreme Court का जो right है अंडर आर्टिकल 32 है, which itself is a fundamental right. It means the writ jurisdiction of Supreme Court itself is a fundamental right. Hence, अगर कोई applicant Supreme Court में writ के लिए apply कर रहा है, Supreme Court cannot deny that. Supreme Court is mandated to take that writ or to take that case, right? Supreme Court cannot deny. ये बहुत important बात है, क्योंकि Article 32 itself falls under Part 3 of Indian Constitution, which is fundamental right. It means it cannot deny. While high courts can deny. अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ये रिट उतना सही नहीं है, तो हाई कोर्ट कैन डिनाई रिट ज्यूरिसडिक्शन। कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है दोनों के बीच जो हमें पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये बन जाता है, हु हैव द पावर टू डिफाइन रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के एट प्रेजेंट 5 रिट ज्यूरिसडिक्शंस हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। क्या इन ज्यूरिसडिक्शन को और इंक्रीज किया जा सकता है, या हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को इंक्रीज करना हो तो हु हैव द पावर टू डील विद दिस ज्यूरिसडिक्शन? द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन इनहेंस दिस ज्यूरिसडिक्शन। पार्लियामेंट इसे और इंप्रूव कर सकता है, उसके पास ये राइट है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हमें पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट के ज्यूरिसडिक्शन के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड the writ jurisdiction of Supreme Court under Article 32. At present, we have 5 writ jurisdictions. The very first is the writ of habeas corpus. Habeas corpus के writ 1679, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये कॉन्सेप्ट है यूके का। मैं आपको उसी के स्लाइड में पढ़ा दूं तो ज्यादा बेटर है, आपको लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा।
We are talking about the writ of habeas corpus. This writ is originating from UK. Year was 1679. आप सब जान के हैरान हो जाएंगे, हैबियस कॉर्पस का रिट अपने आप में एक प्रैंक का रिजल्ट है। हुआ यह था कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, जिसको अपने यहाँ राज्यसभा कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब ये बिल लाया गया हैबियस कॉर्पस कि इसको पास किया जाए या ना किया जाए, जब वोटिंग हो रही थी उसी समय एक हेल्दी इंसान, जिसको मोटा कह देते हैं मजाक में, हेल्दी इंसान गेट से अंदर आता है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, एक लॉर्ड था, जो काउंटिंग कर रहे थे वोट की काउंटिंग करने वाले ने मजाक में बोल दिया कि 10 लोग आ गए। एक्चुअली ही वाज सिंगल पर्सन, बस इतना मोटा था कि उसको देख के उसने मजाक में कहा कि 10 लोग आ रहे हैं। बाजू में बैठा इंसान जो कि टिक कर रहा था कितनों ने हाँ बोला है कितनों ने ना बोला है, उसने बाय मिस्टेक बिना ऊपर देखे लिख दिया 10 लोगों ने यस बोल दिया है। जब भी कहीं वोट होता है, वोटिंग होती है, लेट्स सपोज 100 पीपल आर देयर, तो हम उसमें पूछते हैं कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, तो लेट्स सपोज 100 में से 54 ने यस बोला, 46 ने नो बोला। जबकि इंग्लैंड में इशू ये हुआ कि जब ये वोटिंग हो रही थी तो एक मोटा इंसान अंदर आया और काउंटिंग कर, उस समय डिजिटलाइजेशन उतना था नहीं, काउंटिंग करने वाले ने मजाक में बोल दिया कि 10 लोग आ गए और बाजू वाले लिख दिया 10 हाँ, और अल्टीमेटली ये पूरा केस 3 वोट से पास हुआ था। ये जो बिल था ये खाली 3 वोट से पास हुआ, जिसमें 10 वोट लिख दिए गए थे एक के, उस मोटे आदमी के। ये अपने आप में एक बड़ा कॉमेडी बात है, कितना मिस्टेक इतनी बड़ी इंग्लैंड में हुई। तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ प्रैंक, जहां से हैबियस कॉर्पस एग्जिस्टेंस में आता है, और आज ये किसी भी लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द हैबियस कॉर्पस। Before moving to the habeas corpus, let me address your questions first or comments first. Good morning, Dipal, Gauri, Anurag, Nisha, each and everyone. Good morning, guys. इस लेक्चर के ड्यूरेशन में आप लोग को जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना, मैं बीच में ब्रेक लूंगा, तब आपको आराम से आपके क्वेश्चंस एड्रेस कर दूंगा। ऑलराइट, जिन भी बच्चों को जो भी डाउट है आप आराम से मुझे लेक्चर के बाद बता सकते हैं, या चालू लेक्चर में आप टाइप कर देना, मेरे पास जैसे टाइम होगा मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। सो वी आर टॉकिंग कि रिट ज्यूरिसडिक्शन कैसे आया था, तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ प्रैंक। ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये तो खाली एक जनरल क्यूरियोसिटी के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी शैल हैव द बॉडी। वी शैल हैव द बॉडी मतलब मान लीजिए किसी को इलीगली डिटेन करके रखा गया है, आप हैबियस कॉर्पस का रिट इशू कर सकते हो कि इसे पकड़ के लाओ मेरे सामने हाजिर करो, टू हैव दी बॉडी। इनिशियली ये जो रिट अप्लाई की गई लगभग 200 इयर्स तक ब्रिटेन में, इसका पर्पस एक्चुअली रिवर्स था। ब्रिटेन में इस रिट को इसलिए अप्लाई किया गया कि किसी की बॉडी लाना नहीं बल्कि जेल में डालने के लिए। जैसे कोई अक्यूज्ड है, किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है, ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर देती थी पुलिस को कि जाओ उसे पकड़ के लाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? इनिशियली ये रेट कोई इलीगल डिटेंशन के लिए नहीं यूज होता था, इनिशियली ये रेट डिटेन करने के लिए यूज होता था, जहां कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देते कि जाओ पकड़ के लाओ, जो भाग गया वो पकड़ के लाओ। इसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। बट विथ टाइम जब से मॉडर्न जुडिशरी इवॉल्व हुई, इसकी मीनिंग चेंज हो गई है। अब हैबियस कॉर्पस रेट स्टेट के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, दिस रेट कैन बी इशू अगेंस्ट स्टेट, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू हो सकती है, गवर्नमेंट किसी को अगर इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है तो। और इन 2025 एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियरिफाई किया है कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन आल्सो बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर आपने किसी को इलीगली पकड़ के रखा हुआ है तो आपके अगेंस्ट भी ये इशू हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस खाली गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू किया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ओनली रिट है जिसमें एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि ये प्राइवेट और स्टेट दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकती है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी रिट नहीं है जो कि एक्सप्लिसिटली ये हो कि प्राइवेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट इशू किए जा सके। कैसे प्राइवेट के अगेंस्ट? लेट मी एक्सप्लेन। लेट्स सपोज
एक पेरेंट्स हैं, एक मदर फादर है जो अपने बच्चे को अपने घर में कैद करके रखे हुए हैं. दे आर इंडिविजुअल बट दे हैव मेक कैप्टिव ऑफ देयर चिल्ड्रन. इन दिस केस कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कि उसे निकाल के ले आओ, हमें चाहिए, हमारे सामने हाजिर करो. ये इलीगल डिसीजन है. आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट. कि कभी पुलिस आपको उठा के अरेस्ट कर रही है बिना किसी रीजन के, बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के, ये इलीगल डिटेंशन. बट habeas corpus writ is not applied on preventive detention. अच्छा, ऑनलाइन जितने बच्चे, मुझे एक बात बताइएगा बेटा कि नॉइस आपको बहुत डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है शादी की? नीचे डीजे बज रहा है, तो क्या मेरी वॉइस क्लियर है लाइव में? जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज टेल मी, क्या मेरी वॉइस क्लियर है लाइव में? क्योंकि नीचे डीजे बज रहा है तो मुझे पता नहीं आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है. हमारे लोग देश में लोग शादी भी बहुत करते हैं ना, पढ़ाने तो देंगे नहीं. लाइव बच्चे प्लीज टेल मी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ओके, क्लियर है. चलिए, तो दिस रिट डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. ये आपको याद रखना पड़ेगा. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. सेकंड, इट अप्लाइज अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल. अब इससे इस साल क्यों इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है? इस साल एक नया कॉन्सेप्ट आया है. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्लोटिंग jurisdiction. फ्लोटिंग jurisdiction और एंटीसिपेटरी हैबियस कॉर्पस रिट. ये 2025 में बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया हुआ है. एंटीसिपेटरी और हैबियस कॉर्पस. व्हाट डज दैट मीन? लेट्स सपोज मुझे ऐसा डर है कि कोई गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल मुझे अरेस्ट कर लेगा, डिटेन कर लेगा, और वो इलीगली करेगा. मतलब मुझे पहले से ही ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मैं डिटेन होने वाला हूं, और जो होगा वो इलीगल होगा, लीगल डिटेंशन नहीं होगा. हो सकता है ना, मान लीजिए अभी मैं गुजरात में हूं, मैंने गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला, मुझे पता रहेगा कि गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी, तुरंत मुझे डिटेन करने की कोशिश करेगी, मुझे पकड़ने की कोशिश करेगी. बट मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया, तो ये जो भी डिटेंशन होगा वो इलीगली होने वाला है. इसलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है 2026 में. ये जजमेंट आया फैब 2026, जहां पे सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी हैबियस कॉर्पस इशू कर देगी. मतलब आपको कोई इलीगली पकड़ने आए, उससे पहले उसको कह दिया जाएगा मत पकड़ना. समझ रहे? लीगली कोई आपको पकड़ने आए तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल इशू होती है, जबकि इलीगली कोई आपको पकड़ने आए तो एंटीसिपेटरी बेल की जगह आ जाएगा एंटीसिपेटरी हैबियस कॉर्पस. अब ये कॉन्सेप्ट कभी भी पहले नहीं था, तो आपकी बुक्स में कहीं नहीं. ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बुक से मिसिंग है, एंटीसिपेटरी हैबियस कॉर्पस. कि अगर आपको ऐसा डर है, ये यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगा. In case if you have a fear that state may arrest you illegally, can we apply for anticipatory habeas corpus? Yes, we can apply for anticipatory habeas corpus. Supreme Court ने precedent set किया हुआ है. Next most important thing, habeas corpus writ do not entertain, it do not apply the concept of locus standi. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी. लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, जो इफेक्टेड पार्टी है, खाली वही कोर्ट अप्रोच कर सकती है. जैसे कि मान लीजिए मेरा और किसी पर्सन एक्स का झगड़ा हो रहा है, तो हम दोनों में से कोई कोर्ट जा सकता है, कोई तीसरा आदमी नहीं जा सकता कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं. मेरी बात समझना. किसी भी केस में अगर आपको कोर्ट को अप्रोच करना है तो कोर्ट पूछता है कि आप बताइए आपका स्टैंड क्या है, आप क्यों आए. हम कहते हैं ना व्हाट इज योर मैटर. कोर्ट भी ये जरूर पूछता है व्हाट इज योर स्टैंड, व्हाई यू केम हियर. इसी को लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल कहा जाता है कि क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें. ज्यादातर लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि किसी भी केस के लिए आपका लोकस स्टैंडी होना जरूरी है, कोई भी आधा ज्यादा आदमी आके नहीं कह सकता. बट इन केस ऑफ हैबियस कॉर्पस, locus standi is not mandatory.
मतलब जिसे पकड़ा जा रहा है जरूरी नहीं है कि वही जाकर कोर्ट में कहे कि मुझे पकड़ा गया है, उसका फ्रेंड भी जाके कह सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ 2025 के जजमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हो? व्हाट इज लोकस स्टैंडी? बट दिस लोकस स्टैंडी जो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इट इज नॉट ब्लैंकेट और एब्सोल्यूट। इट इज नाइदर ब्लैंकेट नॉर एब्सोल्यूट। मतलब क्या होता है, कोई भी आदमी नहीं जा सकता। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई भी पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट होता है PIL का, या आगे हम रीट देखेंगे, द रीट ऑफ क्यो वारंटो। मेरा कोई लेना देना है नहीं, मैं फिर भी जा सकता हूं। इन केस ऑफ हैबियस कॉर्पस ये अप्लाई नहीं होता। हैबियस कॉर्पस ये नहीं कहता कि कोई भी आकर कंप्लेन कर सकता है। नो डाउट जिसे पकड़ा गया है वो नहीं आ रहा, तो उसका फ्रेंड या फैमिली मेंबर आना चाहिए, कोई भी नहीं आ सकता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। नहीं समझ पा रहे? एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है केवल, इसे गवर्नमेंट ने डिटेन कर लिया है, इलीगल डिटेन किया हुआ है पुलिस ने। कौन हैबियस कॉर्पस की रिट लेके जा सकता है? आइदर केवल्स फ्रेंड और फैमिली। और इसमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि केवल इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद अपने रिट साइन कर सके, क्योंकि केवल जेल में हो शायद, या कहीं ऐसी जगह हमें पता ही ना हो। तो इसकी इनएबिलिटी पहले प्रूव करनी है, उसके बाद इसके फ्रेंड या फैमिली रिट दे सकते हैं। कोई भी आके नहीं दे सकता। इट इज नॉट एब्सोल्यूट। लोकस स्टैंडी को रिमूव कर दिया है। लोकस स्टैंडी अप्लाई होता है, बट हाँ इंसान नहीं आ सकता, तो उसके बिहाफ पे फैमिली मेंबर या नेक्स्ट फ्रेंड आ सकता है हैबियस कॉर्पस का रिट इशू करवाने। गिव मी अ सेकंड बेटा, बैंक के 2-3 मैसेज आ गए। श्लोक शाह, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके देन, इच्छा मृत्यु विषय कहजो ने सर आज न्यूज में જોયું છે। बेटा श्लोक 11 to 12 इच्छा मृत्यु का ही लेक्चर है, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। हरीश राणा जजमेंट 11 to 12 है। ओके, सो दिस इज अबाउट हैबियस कॉर्पस रिट। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं, आप ध्यान रखना। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू शैल हैव द बॉडी, मतलब जिसे आपने डिटेन करके रखा है उसे हमारे सामने, मतलब कोर्ट के सामने लेके आओ। हियर इट इज नॉट मैंडेटरी ऑलवेज टू हैव फिजिकल बॉडी। हमेशा ये जरूरी नहीं कि उस इंसान को ही पकड़ के लाओ। अगर कोर्ट में पुलिस आती है, पुलिस ये प्रूव कर दे रही है कि ये डिटेंशन इलीगल नहीं है, तो बॉडी लाने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा याद रखना। हैबियस कॉर्पस में इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू हैव अ फिजिकल बॉडी। जबकि कहा जाता है कि हैव अ फिजिकल बॉडी मतलब तो है, बट हमेशा फिजिकल बॉडी लाना जरूरी नहीं है। कोर्ट ऑर्डर देती कि जिसको आपने डिटेन किया हमारे सामने लेके आओ, हम बताएंगे इलीगल डिटेंशन है या लीगल डिटेंशन है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। एंटीसिपेटरी हैबियस कॉर्पस इशू हो सकती है। उसके साथ साथ हमने रिसेंट कॉन्सेप्ट देखा कि द लोकस स्टैंडी इज नॉट एब्सोल्यूट। फैमिली मेंबर या रिलेटिव ही अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी रैंडम इंसान अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हैबियस कॉर्पस रिट। लेट्स गो टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन मेरा टफेस्ट लेवल पे है जो यूपीएससी का है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करने की ट्राई कीजिए, तब तक मैं आंसर दे देता हूं। ठीक है, consider the following statement regarding the writ of habeas corpus in light of recent judicial development. A writ of habeas corpus is maintainable against a detention order even if the detainee has already been remanded to judicial custody by competent magistrate, provided the underlying arrest was in violation of constitutional safeguard under 32. मुझे पता है क्वेश्चन समझना आपके लिए मुश्किल होगा, मैं समझा देता हूं। ये कह रहा है कि एक हैबियस कॉर्पस रिट हम किसी ऐसे इंसान के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक जुडिशियल ऑर्डर में हो, मैजिस्ट्रेट के जुडिशियल ऑर्डर में। ठीक है, बट प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग अरेस्ट वाज इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। बस ये होना चाहिए कि जो भी अरेस्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के अगेंस्ट था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इवन जुडिशियल ऑर्डर भी हो, बट अगर वो ऑर्डर इलीगल है, वो अरेस्ट इलीगल है, तो भी हैबियस कॉर्पस का रिट इशू हो सकता है। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज
ऑर्डर देता है, ठीक है 15 दिन की रिमांड दे दो, बट आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप कहते हैं भाई ये जो डिटेंशन है वो इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल ऑर्डर होने के बावजूद भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू कर सकता है। स्टेटमेंट 2, इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, if the detaining authority fails to apply for the cancellation of existing bail before passing a fresh detention order, the detention is liable to be quashed as it bypass the ordinary law of the land। अब ये स्टेटमेंट बड़ा टफ है, ये क्या है समझना। ये स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए, समझना ठीक है, कोई आदमी बेल पे है, आपको पता है बेल क्या होता है, जब कोर्ट हम जेल जाते हैं तो हमें बेल मिलती है कुछ दिनों के लिए। कोई बेल पे है और बाहर जाके उसने कुछ वायलेशन किए, कुछ गलत काम किया, तो क्या इस केस में पुलिस उसे उठा के प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर सकती है? यू नो ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन जहां कुछ क्राइम करने की जरूरत नहीं है, बिना क्राइम किए ही अरेस्ट किया जा सकता है। तो क्या ये अलाउड है? सुप्रीम कोर्ट ने 2026 कहा कि नो, अगर कोई बेल पे बाहर है आप उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में वापस अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको उसका अरेस्ट करना भी है तो बेल ऑर्डर को कैंसिल करवाओ, ठीक है। ये यहां वही कहा गया है कि इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, इफ डिटेनिंग अथॉरिटी फेल्स टू अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बेल बिफोर पासिंग अ फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर, द डिटेंशन इज लायबल टू बी क्वास्ड एज इट बाईपास ऑर्डिनरी लॉ। यस, मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं जिसको ना समझ में आया हो, क्योंकि ये 26 के जजमेंट सब इंपॉर्टेंट जजमेंट है बेटा। एक लेडी का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ज्योति, ये लेडी जेल में है, ठीक है, इसे बेल मिलती है, बेल की डेट है 10 to 15 मार्च, या 5 दिन आराम से बेल पे बाहर रह सकते हैं, शायद कोई शादी वगैरह हुई हो। इस ड्यूरेशन में अगर पुलिस को लगता है कि ये बेल पे बाहर है बट कोई क्राइम कर सकती है, तो क्या पुलिस इसे वापस अरेस्ट कर सकती है इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि भाई ये तो क्राइम कर सकते हैं, इसको वापस अरेस्ट कर लो प्रिवेंटिव डिटेंशन में। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल इस चीज को डिनाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, अगर कोई बेल पे बाहर है आप उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको उसे अरेस्ट भी करना है तो ये जो बेल ऑर्डर है इसका कैंसिलेशन कराओ। और अब अगर आप बेल ऑर्डर कैंसिल नहीं करवा पा रहे और किसी को अरेस्ट करते हो तो वी एज अ कोर्ट हैव राइट टू इशू हैबियस कॉर्पस। तो हम कह देंगे कि ये डिटेंशन जो है वो इलीगल डिटेंशन है, बिना बेल ऑर्डर कैंसिल किए आप किसी को रीअरेस्ट नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 2 बेटा यही समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन दैट केस ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का वायलेशन माना जाएगा। स्टेटमेंट 3, एज पर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 2026 in habeas corpus petition involving chosen family or LGBTQ partners, the High Court must conduct in-camera proceeding and avoid directing counseling to overcome the identity or sexual orientation of the corpus। ये बड़ा फेमस केस है 2026 का बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। हुआ ये था, LGBTQ कम्युनिटी के बच्चे कोर्ट में कंप्लेन क्योंकि माँ बाप लेके गए और कोर्ट ने क्या इशू किया कि इनका काउंसलिंग की जाए। कोर्ट ने कहा कि ये जो इनका मेल टू मेल ओरिएंटेशन या फीमेल टू फीमेल ओरिएंटेशन है, जिसको हम होमोसेक्सुअल्स कहते हैं, इनका जो ओरिएंटेशन है उसको काउंसलिंग करके दूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, पेरेंटिंग डू नॉट मीन ओनली बायोलॉजिकल पेरेंटिंग। अगर कोई सेक्सुअली ओरिएंटेशन अलग रखता है जिसको हम LGBTQ कहते हैं, तो इसकी आप जुडिशियल काउंसलिंग नहीं करवा सकते, इन कैमरा प्रोसीडिंग कीजिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 26 का जजमेंट है हैबियस कॉर्पस को लेकर। स्टेटमेंट 4, इन रूल ऑफ लोकस स्टैंडी इज सो ब्रॉड इन हैबियस कॉर्पस दैट एनी स्ट्रेंजर कैन मूव द कोर्ट विदाउट स्टैब्लिशिंग अ बोनाफाइड रिलेशनशिप और द इनकैपेसिटी ऑफ द डिटेन्यू। मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि ये स्टेटमेंट गलत है। हैबियस कॉर्पस में लोकस स्टैंडी स्ट्रेंजर्स को अलाउ नहीं होती, फैमिली या फ्रेंड को ही अलाउ होता है। स्ट्रेंजर जिसका कोई बोनाफाइड रिलेशन नहीं है वो कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता। इस तरह स्टेटमेंट 1, 2 and 3 इज करेक्ट, व्हाइल स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। 1, 2 and 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी का भी आंसर नहीं आया है, इतना टफ क्वेश्चन था कि सारे बच्चे मात खा गए, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, शाबाश। नेक्स्ट विल कम टू द रिट ऑफ मैंडमस।
ये सबसे इंपॉर्टेंट रिट है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको तो हमेशा न्यूज में रहता है रिट ऑफ मैंडेमस। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमने एक ट्रेंड देखा है कि जीपीएससी एग्जाम में एक एग्जाम प्रोसेस 2 से 3 साल का टाइम ले रही है। जैसे प्रीलिम्स होती है जैन में, मेंस होती है अक्टूबर में, मेंस का रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहा है, दिसंबर नेक्स्ट ईयर, और इंटरव्यू अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है। बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब यहां जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही है ना। जब भी ऐसा कुछ हो कि जो भी अथॉरिटी है पब्लिक अथॉरिटी, ये मैंडेमस हमेशा पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है। तो ऐसी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है जो अपनी ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां कोर्ट्स हैव राइट टू इशू द रिट ऑफ मैंडेमस एंड कोर्ट विल आस्क दैट अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। जैसे कोर्ट जीपीएससी को गाइडलाइन इशू कर सकती है कि जीपीएससी कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन वेरी फर्स्ट डेट और द डेट स्पेसिफाइड। आप बार बार इतना डिले नहीं कर सकते। इस साल एग्जामिनेशन बॉडीज बहुत कॉन्फ्लिक्ट में थी। जैसे एसएससी प्रोटेस्ट आप सबने सुना होगा, एसएससी में एसएससी के ऊपर केस हो गया था, उसका प्रोटेस्ट हुआ है। तो जो केसेस होते हैं बेटा वो सब किस में होते हैं? मैंडेमस में होते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, आपने ये किया नहीं, आपको ये। मतलब जहां पब्लिक अथॉरिटी की कोई ड्यूटी है और पब्लिक अथॉरिटी वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो वहां पे आ जाएगा मैंडेमस का रिट। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन 26 में इवॉल्व हुई है। मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो पब्लिक ड्यूटी है। इन दैट केस रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। जनरली रिट ऑफ मैंडेमस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं होता, ये इशू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में प्राइवेट पे इशू नहीं होता। बट सुप्रीम कोर्ट ने 26 में ब्रिलियंट जजमेंट दिया कि अगर कोई बॉडी है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बट वो ड्यूटी पब्लिक फंक्शन की प्रोवाइड करता है। एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज एक स्कूल है XYZ पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में टीचर्स की सैलरी क्या होगी, टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, क्या करिकुलर होगा वगैरह, इट इज प्राइवेट जॉब, नो इशू। बट हर स्कूल में 25% सीट आपको देनी पड़ती है राइट टू एजुकेशन के लिए। तो RTE एक्ट में लिखा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एम आई राइट? अगर वो स्कूल ये सीट प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, इन दैट केस रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट दिस स्कूल। क्योंकि स्कूल भले प्राइवेट स्कूल है बट जो ड्यूटी है वो पब्लिक ड्यूटी है, वो ड्यूटी किसी लॉ में या स्टैट्यूट में लिखी गई है। एम आई क्लियर? तो इफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग अ पब्लिक ड्यूटी, जिसे हम पब्लिक ड्यूटी डॉक्ट्रिन बोल दिया हमने, सुप्रीम कोर्ट 26 में कहा पब्लिक ड्यूटी डॉक्ट्रिन, तो रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट दैट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बात बहुत ध्यान से समझना। आप लोग लक्ष्मीकांत बुक रीड कर रहे हैं या कोई ना कोई सिमिलर बुक्स रीड करते हैं, उस बुक में क्लियरली ये चीज लिखा गया है कि रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यहां पे आपको लक्ष्मीकांत को इंप्रूव करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत में एडिशन कर लेना, क्योंकि इस साल ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है कि क्या रिट ऑफ मैंडेमस इन एनी सिचुएशन कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। नो, इन वन सिचुएशन बट प्राइवेट इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ पब्लिक डोमेन, देन यू कैन इशू द रिट ऑफ मैंडेमस टू प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है बेटा, खास याद रखिएगा। यहां से मुझे लग रहा है इस साल क्वेश्चन बनेगा मैंडेमस। ठीक है, इतना ही नहीं और ध्यान रखना कि रिट ऑफ मैंडेमस किसके किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया while performing judicial duty, मिनिस्ट्रियल पोस्ट, मिनिस्ट्रीज, ठीक है, और पार्लियामेंट, इन सभी को रिट ऑफ मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते तुम आप ये काम करो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट दिस बॉडी। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 25-26 में कुछ और इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हुए हैं। कैसे जजमेंट?
क्वासी जुडिशियल बॉडी, और वी कैन कॉल इट एज ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रेसिडेंस सेट किया इस साल। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। इसलिए पेंडिंग है क्योंकि टाइम पे एक्शन नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, हम कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि टाइमली जजमेंट दो या कैसे जजमेंट देना है। ये रिट ऑफ मैंडेमस हम कोर्ट को इशू नहीं कर सकते, कोर्ट का खुद का अधिकार है। बट केस चालू करने का रिट ऑफ मैंडेमस हम इशू कर सकते हैं। और रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स को सुप्रीम कोर्ट में रिपीटेड रिट इशू किए हैं ऑफ मैंडेमस टू टेक अप अ केस। जो केस काफी लंबे टाइम से पेंडिंग है उससे चालू करो। जजमेंट कैसे देनी है, जजमेंट क्या देना है, वो आपके राइट है, आप डिसाइड करना, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट द रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड टू बिगिन अ जजमेंट विच इज पेंडिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लक्ष्मीकांत अगर यहां भी मिस करता है, लक्ष्मीकांत कहता है कि ये जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का अगेंस्ट किसी भी कंडीशन में इशू नहीं होता। बट देयर इज वन कंडीशन, इफ लॉन्ग टर्म पेंडिंग केस, in case of long term pending case, writ of mandamus can be issued against quasi judicial bodies or judicial bodies। 25-26 का ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, खास ध्यान रखिएगा रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में। ठीक है बेटा जी, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लें, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। व्हाट इज रिट ऑफ मैंडेमस? रिट ऑफ मैंडेमस इज समथिंग दैट कोर्ट्स कैन फोर्स, कैन मैंडेट अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ओन ड्यूटी। एक्स्ट्रा काम करने के लिए नहीं कह सकते या वॉलंटरी ड्यूटी करने के लिए नहीं कह सकते। अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई ड्यूटी है जो कि वॉलंटरी है, करना चाहे तो करे, ना तो ना करे, वहां रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं होगा। ऐसी ड्यूटीज जो कि मैंडेटरी ड्यूटी है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर कंपल्सरी ऑर्डर पास करके परफॉर्म कराया जा सकता है। रिसेंट जजमेंट कहता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है इन केस ऑफ पब्लिक वर्क डॉक्ट्रिन। Third, it can be issued against judicial authority or quasi-judicial authority in case the long-term pending of case is there। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज का जुडिशियल फंक्शन या प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस कभी भी इशू नहीं किया जा सकता। अगर इतना आपके सामने क्लियर है तो लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन देन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज योर स्क्रीन, आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, a writ of mandamus is maintainable against a private unaided educational institution for the enforcement of teachers' salary contract as education is a public function. Statement 2. Under the public function test established in 2025, the mere fact that a private entity is governed by statutory RBI guidelines does not make it private commercial transaction amended to mandamus। देखिए बहुत ध्यान से समझना, ये कहता है व्हाट इज पब्लिक फंक्शन टेस्ट। पब्लिक फंक्शन टेस्ट मतलब जो ड्यूटी है वो पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए। ये कह रहा है कि 2025 सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एस्टेब्लिश किया कि मेयर फैक्ट दैट अ प्राइवेट एंटिटी इज गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी आरबीआई गाइडलाइंस, मतलब कोई प्राइवेट एंटिटी है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से हो रहा है, किसी लॉ से गवर्न हो रही है, खाली उसी वजह से उसे हम कंसिडर कर लेंगे कि वो पब्लिक फंक्शन है। तो ये कहता है कि नहीं, ये प्राइवेट कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को मैंडेमस के लिए एलिजिबल नहीं बनाता। बाल बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज पब्लिक फंक्शन, तो पब्लिक फंक्शन वो नहीं होता कि भाई आपको जो आपका रेगुलेशन है वो कोई गवर्नमेंट रूल से हो रहा है या गवर्नमेंट आपको रेगुलेट कर रही है, तो पब्लिक फंक्शन नहीं हुआ। पब्लिक फंक्शन हुआ जो काम लोगों के लिए हो रहा हो, जैसे आरटीई वाला एग्जांपल है। मेयर द रेगुलेशन बाय आरबीआई और एनी अदर बॉडी डज नॉट फॉल्स अंडर पब्लिक फंक्शन डॉक्ट्रिन। ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि सैलरी देना है नहीं देना है, क्या करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात है और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहां तक किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आया हो, प्लीज आस्क मी एज आई विल मूव फॉरवर्ड। 2 मिनट में लाइव में वेट करता हूं, अगर कोई बच्चा कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क मी हियर।
आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट, आप लोग पूछ लीजिए, डिस्कस कर ले, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आज का लेक्चर काफी टफ है, क्योंकि आप लोग अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आप लोग का कुछ है ही नहीं, सब छोटे बच्चों वाला है। ना हो तो भी मुझे बताइएगा बेटा, तो मैं आगे मूव कर सकूं, जो भी बच्चे लाइव हैं। आई अंडरस्टैंड आज का लेक्चर थोड़ा टफ है, क्योंकि जनरली जो हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग है आज। लो, कोई बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं, क्या बच्चे हैं यार। अगर आप लोग को यहां तक कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, नो डाउट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वी विल डिस्कस नाउ अबाउट रिट ऑफ प्रोहिबिशन। व्हाट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन? प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को होने से रोकना। लेट्स सपोज कोई जुडिशियल अथॉरिटी है ना, प्राइमरली ट्रिब्यूनल्स और जुडिशियल अथॉरिटी। अगर ट्रिब्यूनल या जुडिशियल अथॉरिटी है जिनका वो कोई ऐसा केस उठा ले जो इनके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अहमदाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसा केस उठा ले जो केस महाराष्ट्र का हो या बॉम्बे हाई कोर्ट का हो, तो यहां कोर्ट ऐसे केस को एंटरटेन कर रहा है जो उसके राइट से बाहर है। Are you guys getting my point? In that case, the upper courts can issue the writ of prohibition. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने पावर से बाहर जा रहा है तो हाई कोर्ट कैन इशू, हाई कोर्ट जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू। ये जुडिशरी एक दूसरे के अगेंस्ट इशू करती है। जुडिशरी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं करती। इट इज नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इट इज अगेंस्ट जुडिशियल बॉडी, आइदर ट्रिब्यूनल और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जहां कोई कोर्ट अपने राइट को, अपने पावर को पावर के बाहर जाकर कोई केस ले रहा है, तो वहां पे अपर कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कि स्टॉप प्रोसीडिंग इमीडिएटली। आप इस केस को नहीं ले सकते, आपके अधिकार के बाहर। आई होप आप मेरी बात बहुत ही आराम से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसी को रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहा जाता है, जो प्रोहिबिट करने के लिए लाया गया है, रोकने के लिए लाया गया है। इसी की जैसे एक रिट होती है जिसे कहते हैं रिट ऑफ सर्चरी। रिट ऑफ सर्चरी, सर्चरी का रिट क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा केस लिया जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं था और आपने उसका जजमेंट भी दे दिया। जब तक केस ऊपर गया आपने जजमेंट दे दिया था, ठीक है। तो आफ्टर जजमेंट सर्चरी का मेन पर्पस क्या है? इट चेक द पास्ट, इट चेक्स द पास्ट। ये उस जजमेंट को वेरीफाई करेगा कि जो आपने जजमेंट दिया है वो सही है या नहीं है, और अगर जजमेंट सही नहीं है तो उसे क्वेश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। सर्चरी इज इशूड बाय upper courts to lower courts in case the lower courts have passed certain judgment which was not in their jurisdiction or malified, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको रिट ऑफ सर्चरी कहा जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जर्व की। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग ज्यादातर अब ये मिसयूज कर रहे हैं कि जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं या लोअर कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, दो पार्टी थी, पार्टी एक्स और पार्टी वाई, इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से अगर पार्टी एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड तो हमारा जुडिशियल प्रोसीजर अपील करने का राइट देता है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। आजकल ज्यादातर लोग क्या दिमाग चला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसके अगेंस्ट अपील, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 227, इसका यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में करो, हाई कोर्ट टाइम लेगा, आराम से अपील को उठाएगा नहीं उठाएगा क्या पता वगैरह। तो अब लोग एक मिसयूज कर रहे हैं इसका कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिकल 227 लोग ज्यादातर आर्टिकल 32 का यूज कर लेते हैं
कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, मिसयूज कहा जाता है इसे, और वो डायरेक्टली चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ज्यादातर लोग दे आर बाईपासिंग द अपील प्रोसीजर। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। दे आर बाईपासिंग द अपील प्रोसीजर बाय यूजिंग रिट ऑफ सर्च्योरी, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो उसका राइट नहीं था। फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, केस चलता है, पता चलता है राइट डिसीजन राइट था या रॉन्ग था, बात अलग होती है, बट क्या वो उसका अधिकार ही नहीं था डिसीजन देने का, वो गलत क्वेश्चन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 26 में एक चीज कह दी कि अगर अब से कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का के अगेंस्ट सर्चरी इशू कर रहा है तो सर्चरी मेयर इस ग्राउंड पे नहीं एक्सेप्ट की जाएगी कि वो उसका डिसीजन गलत है। सर्चरी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं कर सकते। यू मस्ट फॉलो आर्टिकल 227। अपील कीजिए, अपील जुरिस्डिक्शन से ऊपर आइए, डायरेक्ट आप रिट का यूज नहीं कर सकते। रिट का यूज करने का मतलब तो बाईपास करना है ना। जैसे इंडिया में अगर एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो हाई कोर्ट में लगभग 1.5-2 साल निकल जाते हैं। उसके अगेंस्ट फिर अपील करनी, सुप्रीम कोर्ट में 5-7 साल निकल जाते हैं। लोग दिमाग चलाते हैं, अपील छोड़ के सीधा रिट का यूज करके आर्टिकल 32 में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया, बोला ये अलाउड नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट ऑफ सर्च्यूरी में हम ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि केस सही चला था गलत चला था, प्रूफ सही था या गलत था। We will not enter into the merits of evidence. We will simply check the prima facie, is it correct or incorrect. मुझे एक सिंपल एग्जाम्पल ले दी, आप ज्यादा इजीली समझ जाएंगे। जीपीएससी की एग्जाम होती है, जीपीएससी एक PAK प्रोविजनल आंसर की रिलीज करती है या फाइनल आंसर की रिलीज करती है। लेट्स सपोज जीपीएससी के आंसर की में 15 क्वेश्चन गलत है। अभी अपने आप में सोचने की बात है, मैं हर सैटरडे टेस्ट लेता हूं, इस इंस्टीट्यूट में मैंडेटरी टेस्ट है। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन में आंसर की गलत हो जाए इसके चांसेस 0 है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने कोई आंसर दिया वो गलत निकला। जीपीएससी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 200 क्वेश्चनों से एक साल में बना होता, फिर भी 30 क्वेश्चन गलत बनाती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से नशे करके क्वेश्चन पेपर बनानी उन्हीं को पता है खाली। लास्ट ईयर तो यूपीएससी में ये हुआ, फाइनल रिजल्ट देने के बाद यूपीएससी बोलता है सॉरी हमारी 2 आंसर की गलत थी। भाई साहब कितने बच्चों का तुम भविष्य खत्म कर गए। इन सच सिनेरियो आप एक्चुअली क्या करते हो, आप कोर्ट जाते हो और आप कोर्ट को कहते हो कि ये जो डिसीजन लिया गया है बाय जीपीएससी इज रॉन्ग डिसीजन, इशू द रिट ऑफ सर्च्यूरी, ये सारी आंसर की गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सीधे चेक करेगा आंसर सही है कि गलत है। ये प्राइमा फेसिया पता चल जाता है कि आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि सामने वाले ने प्रूव कर दिया। सामने वाले ने क्या किया, तुरंत एक बुक ले आया, सर देखो यहां पे ये लिखा है ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर ऐसा कोई केस है जो प्राइमा फेसिया सही या गलत लग रहा है तो सर्च्यूरी की रिट लेंगे हम। बट अगर ऐसा लगता है कि इस केस को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा तो रिट सर्च्यूरी की इशू नहीं होगी, आपको अपील के द्वारा ऊपर आना पड़ेगा। प्राइमा फेसिया डॉक्ट्रिन यहां पे खास अप्लाई होने वाली है। अब एक नया ट्रेंड चला है जिसको हम सर्चुरीफाइड प्रोहिबिशन कहते हैं। ये नई रीत है, सर्चुरीफाइड प्रोहिबिशन। मान लीजिए मैंने एक अपील की प्रोहिबिशन की कि भाई साहब ये जो केस चल रहा है ये इसके राइट में नहीं है, ये गलत केस चला रही है कोर्ट। बट मुझे ये डर है कि जब तक मेरी अपील ऊपर सुनी जाएगी तब तक तो डिसीजन भी दे देंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं 2 रिट एक साथ करवा रहा हूं कि अगर जब तक मेरी प्रोहिबिशन की रिट पहुंची और इन्होंने डिसीजन दे दिया है तो आप प्रोहिबिशन पहले लगाना फिर सर्चुरी भी लगा देना। कंफ्यूजिंग हो रही है, चलिए फिर से कंफ्यूजन है फिर से समझाता हूं। इमेजिन कीजिए एक केस चल रहा है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। यहां पे केस ये है कि वाई सर्चुरी की रिट इशू, प्रोहिबिशन की रिट इशू कराना चाहता है। प्रोहिबिशन कि जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, मतलब ये उसका केस नहीं किसी और का केस है, मुझे प्रोहिबिशन की रिट इशू करानी है। बट मैंने अपील की और मुझे डर है कि उसी 2 दिन में वो डिसीजन दे देंगे। फिर मैं क्या करूंगा, मान लीजिए डिसीजन आ गया तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा, जेल में बैठ के फिर रिट इशू करानी पड़ेगी। बेटर क्या है मैं प्रोहिबिशन और सर्चुरी दोनों एक साथ कराऊं, इसको सर्चुरीफाइड प्रोहिबिशन कहा गया। कि अगर
अपील पहुंचने से पहले जजमेंट आ जाए तो जजमेंट को भी कैंसिल कर देना, तो सर्टिफाइड प्रोहिबिशन का टेस्ट माना जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। ये नया ट्रेंड है सर्टिफाइड प्रोहिबिशन, जहां पे दोनों रेट एक साथ इशू कराई जाती है, सर्जरी की भी और प्रोहिबिशन की भी। अगर आपका क्विक रिवीजन हो चुका हो तो हम एक क्वेश्चन आगे लेके चले सर्टिफाइड पे, सर्जरीज पे। A writ of certiorari can be issued by a high court to quash an interlocutory order passed by subordinate civil court in a partition suit। ये कह रहा है कि अगर सिविल कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, क्या उसको हाई कोर्ट कैंसिल कर सकता है रिट ऑफ सर्च्योरी से? मैंने अभी आपको बताया कि यह अलाउड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सिविल कोर्ट का अगर आपको जजमेंट कैंसिल करना है तो आप रिट के द्वारा नहीं, अपील के द्वारा करो, जो रियल प्रोसीजर है। रिट शॉर्टकट के यूज नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्टिफाइड मैंडमस a court may simultaneously quash an illegal seniority list and direct the authority to prepare a fresh one। yes, ज्यादातर आजकल जो बच्चे हैं ना सिविल सर्विस की तैयारी वाले, वो इस टाइप के केस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इशू क्या होता है कि आंसर की गलत निकाली गई है, वो तो ठीक है, बट आंसर की वजह से जो रिजल्ट बना है वो भी गलत है। तो हम चाहते हैं कि दो रिट एक साथ इशू हो। ध्यान समझ, दो रिट एक साथ इशू, सर्टिफाइड मैंडमस मतलब पहले तो आप इस आंसर की को गलत करो, और एक बार आपने आंसर की गलत किया, आप जीपीएससी को ऑर्डर दो कि नया लिस्ट तैयार करो। जैसे 2024 के प्रीलिम्स में ये हुआ था, जीपीएससी के आंसर की आई गलत साबित हुई, गलत होने के बाद कोर्ट ने उससे ऑर्डर दिया कि अब नया आंसर की तैयार करो और उसके साथ साथ रिजल्ट भी फिर से बनाओ। यहां रिजल्ट बनाना जीपीएससी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जिसे कोर्ट मैंडेट कर रही है मैंडमस निकाल के, जिसको कहा जाता है सर्टिफाइड मैंडमस, जहां पे गलत चीज को सुधारा गया और कहा गया कि अब सही करो। अगर आप सिर्फ सर्चरी को देखो, सर्चरी क्या कहता है, गलत चीज को सुधार दो, बट सही करो नहीं कह रहा। तो हमने नई रीड बना दी सर्टिफाइड मैंडमस, कि गलत चीज को सुधारो और सही करो, ये हमारा आदेश है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग केसेस पढ़ते हो कि जीपीएससी का केस हुआ, यूपीएससी का केस हुआ, नया रिजल्ट बना, नई आंसर की बनी, वो सब इस रिट के अंदर होता है। नेक्स्ट, an error of law warrants a writ of certiorari only if it is apparent on the face of the record and does not require a detailed reappreciation of evidence। yes, मैंने आपसे प्राइमा फेशिया की बात की कि रिट ऑफ सर्चरी तभी इशू होगा जब फेस में, मतलब प्राइमा फेशिया दिख जाए कि हाँ भाई गलत हुआ था। डिटेल रीएवल्यूशन चाहिए तो केस चालू होगा, रिट ऑफ सर्चरी इशू नहीं होगी। तो ओनली 2 and 3 is the right statement, option B is correct one। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। A writ of mandamus is not maintainable against a government company for enforcement of an employee's service condition। The Supreme Court's writ jurisdiction under Article 32 is wider than the High Court jurisdiction under Article 226 in terms of subject matter। This is absolutely true। ठीक है, this is false। A writ of mandamus cannot be maintained against government company for enforcement of employee service condition, क्योंकि एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन इज नॉट अ पब्लिक वर्क। वो एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी वो ट्रिब्यूनल का काम है, उसको मैंडेमस इशू करके नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन 2 इज ओनली करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कहां है ये रहा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू लास्ट रिट, दैट इज रिट ऑफ क्यो वारंटो। व्हाट इज रिट ऑफ क्यो वारंटो? अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, रैंक 301 आई थिंक यूपीएससी में, 2 लड़कियों ने क्लेम किया रैंक 301। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक आईएएस बना और आप गए ऑफिस में, आपने कहा कि यार ये कैसे आईएएस बन सकती है, इसने तो पेपर भी नहीं दिया था। आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपनी पोजीशन पे क्यों बैठा है, क्या उसने एग्जाम पास की है, क्या वो रियली वो पोजीशन डिजर्व करता है, क्या वो क्वालिफाइड है या नहीं है, ये जानना है अगर आपको, क्या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी क्यों उस पोजीशन पे बैठी है, उसके लिए आप रिट ऑफ क्यो वारंटो इशू कर सकते हो। यहां पे पब्लिक अथॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्यों इस पोजीशन पे है। जैसे मान लीजिए कल को आप एसडीएम बन गए और कोई आया आपके ऑफिस में बोला तुम करप्शन करके एसडीएम बने हो,
इसको पैसा खिला के तुमने एग्जाम पास नहीं की है, तो वो कोर्ट जाएगा, बोलेगा इसके खिलाफ क्यों वारंटी का रिट इशू करो, इससे कहो कि प्रूव करे कि एसडीएम कैसे बना, और जो आप प्रूव करते हो उसको क्यों वारंटो कहा जाता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्यों वारंटो वेव्स ऑफ एंटायर लोकस स्टैंडी। इसमें लोकस स्टैंडी की कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी केस कर सकते हैं, एनीवन, एनी पर्सन जिसको लगता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट इलीगल है उस पोस्ट पे, तो आप उसका केस कर सकते हो, उसको क्यों वारंटो का केस कहा जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिट इन टुडेज टाइम। ऑलराइट, एक क्वेश्चन ट्राई करें। The writ is used to ensure that a person holding a public office has legal right to do so is not a usurper. Yes. A writ of quo warranto can be issued against a person holding an office in a private cooperative society if the society receives government grant. Yes. अगर कोई सोसाइटी गवर्नमेंट ग्रांट इशू कर रही है, इशू रिसीव कर रही है, तो वहां भी कौन सी पोजीशन में आपको प्रूव करना पड़ेगा। For this writ to be issued, the office's question must be of substantive nature and created by statute or constitution. Absolutely correct. If a person was qualified at the time of appointment but later loses their eligibility, a writ of quo warranto cannot be issued to remove them. It can be issued to remove them. मान लीजिए पहले कोई क्वालिफाइड था और उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्या उसके खिलाफ क्यों वारंट इशू कर सकते हैं? नहीं, सॉरी, तो उसके खिलाफ क्यों वारंट इशू नहीं कर सकते हैं। समझना, पहले हमारे यहां अगर आपको तलाटी बनना है, आप तलाटी का मतलब जानते होंगे, रेवेन्यू तलाटी वगैरह, तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए थी। तो मान लीजिए बहुत सारे लोग 12th पास वाले बन गए, फ्यूचर में गवर्नमेंट ने क्वालिफिकेशन चेंज कर दी, अब है कि ग्रेजुएट चाहिए, तो पहले जो 12th पास वाले बने थे क्या वो उन सबको निकाल दिया जाएगा? नहीं, जब वो बने थे तो वही एलिजिबिलिटी थी, तो दे आर एलिजिबल। आप एलिजिबिलिटी बाद में चेंज करें तो वो बैकवर्ड, उसको जाके आप पीछे से लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑन 1, 2, 3 एंड 4। बट स्टेटमेंट ऑप्शंस में एक से ना बेटा, फोर्थ एब्सोल्युटली करेक्ट है, 3 भी होना चाहिए। 2 कौन सा था? प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसीव्स गवर्नमेंट ग्रांट्स, बट ये गवर्नमेंट ग्रांट्स किस टाइप की इशूरी वो नहीं बताया, इसलिए हम स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग कर सकते हैं। आंसर आना चाहिए ओनली 1, 3 एंड 4। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हम रॉन्ग कर सकते हैं बेटा, कि ग्रांट कैसी इशूरी हो पता नहीं है, मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ने बनाई है, हाउसिंग सोसाइटी है या नहीं है वो नहीं लिखा गया इस क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट काउंट कर सकते हैं। तो 1, 3 एंड 4 आपका आंसर आना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ आपका रिट जुरिस्डिक्शन का पूरा चैप्टर फाइनली कंक्लूड हो जाता है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि सबसे अलग एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है दुनिया के, ऐसे क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं, सारे करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हैं, तो आपके स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां आप जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं लेक्चर खत्म होने के बाद पीडीएफ में डाल दूंगा, एक क्वेश्चन आप घर जाके फिर से सॉल्व कर सकते हो, और जितना हमने डिस्कस किया वो सब वहां आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर किसी भी बच्चे को रिट जो डिस्कशन में कुछ भी पूछना है प्लीज आस्क, एल्स वी विल एंड दिस लेक्चर। 5 मिनट मेरा दूसरा लेक्चर है। एक मिनट मैडम, खाली थोड़ा डाउट कोइन हो જોઈ લો, 5 મિનિટ પછી ચાલુ કરો, નેક્સ્ટ ખાલી 11:10 શેડ્યુલ કરી દો ને, 10 મિનિટ પછી।